Hello everyone. In this video, we are going to discuss the classification of matter on the basis of its physical properties. तो मैटर की क्लासिफिकेशन को स्टडी करने से पहले we should know the meaning of two new terms. Those are rigidity and fluidity. So let us know what is rigidity and fluidity. Rigidity. रिजिड मीन्स होता है अनबेंडिंग. मीन्स कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम बेंड नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम रिजिड. मीन्स उसका शेप जो है वो फिक्स्ड होता है. फॉर एग्जांपल स्टोन इज रिजिड बिकॉज इट्स शेप इज फिक्स्ड एंड वी कैन नॉट बेंड स्टोन. एंड रिजिडिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस उसके शेप को मेंटेन रखता है when subjected to external forces. So rigidity is the property due to which a substance has tendency to maintain its shape when subjected to external forces. Generally, solid substances are rigid because their shape is fixed. Now the second term is fluidity. What is fluidity? Fluids क्या होते हैं? Fluids are the substances which can flow easily. For example, water क्या है? एक fluid है because it can flow easily. If we pour water on table, then it starts flowing on the surface of table. So water क्या करता है? Water fluidity की property show करता है. So fluidity is the property due to which a substance can flow easily. The property due to which a substance can flow easily, उसको हम क्या बोलते हैं? Fluidity. Generally, gases and liquid substances are fluids. So now we know what is the meaning of rigidity and fluidity. So let us discuss the classification of matter. Classification of matter on the basis of physical properties. अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व बाय सेंसेस. मतलब हम हमारे सेंसेस से मीन्स उनको टच करके या देख करके हम जिन प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो मैटर की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? इट्स अपीयरेंस मीन्स वो कैसा दिखता है. इट्स टेक्सचर मतलब उसका शेप कैसा है. इट्स ऑर्डर और स्मेल और इट्स कलर. तो ये सभी क्या है? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि हम इनको देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑल द मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री एज solids,
liquids and gases. So solids क्या होते हैं? Solids are those substances which are rigid, या उनका शेप फिक्स्ड होता है, और we can say they are hard. जो substances hard हैं उनको क्या बोलते हैं? solid. तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आइस, स्टोन, ब्रिक, iron, wood. These all are rigid. So we can say these are the example of solid. Now liquids के example क्या हो सकते हैं? Liquids are those substances which can flow easily. For example, water, milk, oil, petrol, and alcohol. ये सभी क्या हैं? ये सब्सटेंसेस फ्लो कर सकते हैं इजीली, एंड दीज आर कॉल्ड लिक्विड्स. गैसेस क्या होते हैं? गैसेस आर आल्सो फ्लूइड्स. फॉर एग्जांपल एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड and steam. These are the common examples of gases. Now, these three types of matter are also called the three states of matter: solid states, liquid states, and gaseous state. Means we can say any matter can exist in three states. For example, solid state, liquid state, and gaseous state. इनकी जो तीनों स्टेट होती हैं मैटर की, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स जिनसे ये बने होते हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है. सो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड सब्सटेंस क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं? तो उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए लेट अस सी द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स. इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? Something like this. So from this we can see the particles are tightly packed. Means there are very less spaces between the particles, or these spaces are negligible. And due to this property, or due to the less spaces or between particles, their position are fixed. Means they cannot move from their position, and they have maximum force of attraction. Means ये पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा फोर्स से, स्ट्रॉन्गली फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और इस वजह से इनका जो ऑर्डर होता है दे आर ऑर्डरली अरेंज्ड. So from this observation we can conclude that solids have properties. First property can be they have fixed shape. And fixed volume. सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं उनका शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है.
क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, एंड इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं अट्रैक्शन वाले, वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। इस वजह से इनका शेप क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी सॉलिड्स की क्या होती है, दे कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, बिकॉज इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं, तो स्पेसेस और नेग्लिजिबल होते हैं, इस वजह से हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट कंप्रेस्ड मच। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, थर्ड प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, दे हैव हाई डेंसिटीज, मीन्स ये क्या होते हैं, हैवी होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, और फिक्स्ड होती है इनकी पोजीशन, सो दे हैव हाई डेंसिटीज। or we can say they are heavy। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है सॉलिड्स की, दे डू नॉट फिल द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, मीन्स हम किसी कंटेनर में अगर सॉलिड को रखते हैं तो वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितना उनका शेप होता है और वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कंटेनर में स्टोन को रखते हैं तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जो जितना उसका वॉल्यूम है और जितना शेप है, क्योंकि सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है, तो बाकी स्पेस जो रहता है कंटेनर में वो फ्री होता है। सो सॉलिड्स do not fill their container in which they are kept। एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है सॉलिड्स की, they cannot flow, because the force of attraction between particles are very strong, they cannot move from their fixed position, due to this they cannot flow or they are rigid। तो ये थी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज। अब हम लिक्विड सब्सटेंसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कम टू लिक्विड्स। सो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम उसके अरेंजमेंट कैसा होता है लिक्विड्स में पार्टिकल्स का वो देखते हैं। सो लेट अस सी। Let me draw it again. Something like this. So from this we can see the particles in liquid substances are somewhat loose, means उनके बीच में क्या है स्पेसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं in as compared to solids, or due to this the solids in liquid substances particles do not have their fixed position and they cannot move, they can move from one position to another. Due to this they show the property of fluidity or they can flow easily, and in particles के बीच में force of attraction
स्लाइटली मोर देन सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपेरिजन में इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो लेस होते हैं। So from this observation, and we can conclude that liquids do not have fixed shape। इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है क्योंकि पार्टिकल्स फिक्स नहीं होते हैं, इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है और इस वजह से ये मूव करते रहते हैं। एंड बट इनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी ग्लास में वाटर लेते हैं। वाटर क्या है? एक लिक्विड सब्सटेंस है। तो जब हम ग्लास में वाटर लेते हैं और उस वाटर को हम किसी जग में अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो जब ग्लास में हमने वाटर को फिल करा तो वाटर क्या करता है? ग्लास के शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। और जब हम जग में वाटर को फिल करते हैं तो वो जग के शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है और जग का शेप ले लेता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। ये जिस भी कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। और जब हम उस जग से जिसमें हमने ग्लास से वाटर शिफ्ट किया था, वो अब जग से हम वापस से वो वाटर ग्लास में शिफ्ट कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जितना पहले किया था। मीन्स जो उसका वॉल्यूम था और वॉल्यूम है वाटर का वो फिक्स्ड रहता है। सो वी कैन से लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकेंड प्रॉपर्टी, they cannot compressed much। लिक्विड्स को भी हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस होते हैं वो बहुत ही कम होती है। दो these are more than solids but this is still very very small। सो हम इनको ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है दे डू नॉट फिल द कंटेनर in which they are kept। मीन्स सॉलिड्स भी जो कंटेनर में हम इनको रखते हैं उसको पूरी तरह फिल नहीं करते हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती हैं जिसकी वजह से वो फ्लो तो कर सकते हैं बट दे कैन नॉट लीव देयर बॉडी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो सॉलिड से तो कम होती हैं बट गैसेस से बहुत ज्यादा होती हैं। दे हैव moderate to high densities। एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है they can flow easily। ड्यू टू द लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है और इस वजह से वो फ्लो कर सकते हैं इजीली। दे कैन फ्लो और वन अनदर इजीली। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स। अब हम गैसेस सब्सटेंसेस की और गैसेस स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्कस करेंगे।
So let us know the arrangement of particles in gaseous substances. Gaseous substance में particles किस तरह से arrange होते हैं? Something like this. From this we can see the particles are far apart from each other. Means इनके बीच में spaces जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं. तो इनके बीच में force of attraction भी बहुत ही कम होते हैं और negligible होते हैं. और negligible force of attraction की वजह से ये जो particles हैं they can freely move in any direction. ये किसी भी direction में move कर सकते हैं easily. So इस वजह से ये कुछ characteristic properties show करते हैं. वो क्या क्या हैं? First, gases do not have fixed shape. गैसेस का जो होता है शेप फिक्स्ड नहीं होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स्ड नहीं है. उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं और ये स्पेस चेंज भी हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी इनकी कोलिजन की वजह से चेंज होती रहती है. एंड ऑल्सो do not have fixed volume. क्योंकि पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं इस वजह से इनका वॉल्यूम भी जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड. मतलब हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं. क्योंकि इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं और इस वजह से इनको कंप्रेस किया जा सकता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी डेंसिटी. दे हैव वेरी लो डेंसिटीज. हम देख सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर अरेंज रहते हैं. इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है बहुत ही कम होती है. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है गैसेस फिल द कंटेनर completely in which they are kept. ऐसा गैसेस क्या करती हैं जिस कंटेनर में हम गैसेस को रखते हैं वो उसको पूरी तरह फिल कर देती हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसेस जो हैं वो कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स एक्सर्ट करती हैं क्योंकि उनके बीच में जो इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं. इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं. हम सभी में बलून होता है उसमें एयर ब्लो की होगी. तो जब हम बलून में एयर ब्लो करते हैं तो क्या होता है वो इन्फ्लेट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बलून में हमने जो एयर फिल करी है उस एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बलून की वॉल्स को अंदर से पुश करते हैं और उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. इस वजह से बलून इन्फ्लेट हो जाता है और फूल जाता है. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है गैसेस सब्सटेंसेस की? दे कैन फ्लो इजीली. बिकॉज इनके पार्टिकल्स के बीच में गैसेस पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होते हैं. इस वजह से ये क्या होते हैं इजीली फ्लो कर सकते हैं. ये थी गैसेस सब्सटेंसेस की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. तो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हमने इन तीनों स्टेट्स की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी डिस्कस किया है.
I hope it has been clear to you now. What are solids, what are liquids and gases? In next lecture, we'll discuss the interconversion of these three states of particles. Means कोई भी मैटर जिन थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है उनको हम इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.